بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين أما بعد. الحمدللہ ہم گزشتہ کلاس میں ہم لام جلالہ کے قواعد پڑھے تھے. لام جلالہ کو موٹا پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا، لام جلالہ کو باریک پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ لام جلالہ کے علاوہ جتنے لام ہوں گے سب کے سب باریک پڑھے جائیں گے، کسی کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک قاعدہ جو ہے یہ بتلایا گیا تھا. را کے قاعدے ہم شروع کیے تھے اور اس میں را کو پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنے کے قواعد پڑھے تھے. ہم موٹا پڑھنے کے 5 قاعدے پڑھے تھے را کے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے اس کی مثالیں بھی جو ہے بتلائی گئی تھی. یہ اس کی مثالوں کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے مشق، وہ تمام چیزیں جو ہے کل کے سبق میں پوری ہو چکی ہے الحمدللہ. اگر کل کے سبق کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو پہلے اس کو حل کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آج کی کلاس کے لیے. بس ایک بات کی یاد دہانی میں میسج میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے راگ کو باریک پڑھنے کے قواعد. راگ کو باریک پڑھنے کے قواعد پہلے پڑھیں گے ہم، اور اس کے بعد پھر جو ہے نون ساکن کے جو احکام ہیں ہم اس کو دیکھیں گے. نون ساکن تنوین یا پھر نون ساکن کے جو قواعد بنتے اس کو بھی دیکھ لیں گے، اگر وقت اگر رہا ہمارے پاس تو وہ بھی دیکھ لیں گے. راگ کو موٹا پڑھنے کا بیان اور لام جلالہ کے قواعد، اس میں کسی کا کوئی سوال، کوئی خیال، کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات، یا پھر آپ مشق کیے آپ کو جو ہے وہ جو ہے گوار گزرا یعنی مشکل ہوئی آپ کو مشق کرنے میں، تو پھر آپ اس کو بولیے، پھر اپن اس کو حل کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے کسی کا بھی کوئی سوال مصحف نہیں ہے. پانچواں جو سبق ہے مصحف، اس 5واں میں قاعدہ. پانچواں قاعدہ، جی ہاں. جی. تو اس میں عامر جو تیسرا ہے حرف، جی. عامر، ہوں. تو اس میں را، مطلب حمزہ ہے، میم ہے، را ہے، تو را کو موٹا پڑھنے کا ہے یہاں پر بھی. جی ہاں. جی ہاں. الف مدہ بھی ہے وہاں پر بیچ میں، لیکن را کو موٹا پڑھنے کا ہے. قاعدہ مد بھی ہے اس میں، الف مد. الف مت نہیں ہوتا. الف تو مت اس کی سے علامت کیا ہے؟ تھوڑا. الف سے پہلے زبر رہنا تو الف مت ہوں گا. یہاں پر جو الف ہے اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس کو الف مت نہیں بولیں گے. اور آپ کو اس کی وضاحت کل دروس تجوید میں ہم پڑھے تھے. امیر تابو جو ہے اصل میں ام ار تابو تھا وہ. تو یہ حمزہ اچھا. جو ہے حمزہ کی حرکت، زیر کی حرکت کو گرا دیے اور وہ جو ہے میم پہ لگا دی حرکت. نہیں، اسی طرح امیر تابو پڑھے اس کو. اصل میں وہ ام ار تابو تھا، لیکن اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ امیر تابو پڑھ رہے ہیں. جی، جزاک اللہ. چلیے وہی آپ. تو ٹھیک ہے، پھر آج کے آگے کے سبق کی طرف ہم بڑھیں گے. اب دیکھیے را کو باریک پڑھنے کا بیان. کل ہم موٹا پڑھنے کے قواعد پڑھے اور آج جو ہے باریک پڑھنے کے قاعدے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. را کو باریک پڑھنے کے اب 4 قاعدے ہیں صاحب. اس میں موٹا پڑھنے کے 5 قاعدے تھے، لیکن باریک پڑھنے کے صرف 4 قاعدے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے، را کو زیر ہو تو باریک یعنی مرقق پڑھنا چاہیے. را پر اگر زیر ہے تو ہم را کو کیا کریں گے صاحب؟ باریک پڑھیں گے. جیسے رجال، ریح وغیرہ. را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے. جیسے پھر دوس، پھر آؤن، منذر، اس طرح. اب اس میں ہم کیا پڑھے تھے؟ را پر زبر پیش ہو، دو زبر دو پیش ہو، را کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے. موٹا پڑھیں گے پڑھے تھے. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے پڑھے تھے. لیکن اب یہاں پر کیا، پہلے قاعدے میں را پر اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اسی طرح ہم اس میں پڑھے تھے را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو ہم جو ہے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے پڑھے تھے. لیکن اس میں کیا کریں گے؟ را ساکن رہنا، اس سے پہلے اگر زیر رہا تو را کو کیا کریں گے؟ یہاں پر باریک پڑھیں گے. زبر اور پیش کی حالت میں موٹا پڑھیں گے، زیر کی حالت میں باریک پڑھیں گے. اب تیسرا قاعدہ دیکھیے، اس میں را ساکن ہو اور اس سے پہلے کا حرف بھی ساکن ہو، جیسے بکر، ہجر، سحر وغیرہ.
अब देखिए, एक, दो, तीन, तीन कवायद सेम हो गए। पहला कायदा, रा पर जबर पेश हो, रा को मोटा, यहाँ पर रा पर जेर दो जेर हो, रा को मोट बारीक। रा साकिन उससे पहले जबर या पेश हो, रा को मोटा। रा साकिन है उससे पहले जेर हो तो रा बारीक। तीसरा कायदा, रा साकिन हो उससे पहले का हर्फ भी साकिन हो, उससे पहले जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ रहे थे। अब यहां पर भी सेम वही कायदा, रा साकिन रहना, उससे पहले का हर्फ भी साकिन रहना, उससे पहले फिर जेर रहा तो रा को क्या करेंगे साहब, बारीक पढ़ेंगे। सिहर, हिजर, बिक्र, बसीर, कबीर, कदीर। नहीं, कल एक अलामत बताया था मैं, मोटा और बारीक पढ़ने की एक अलामत बताया था मैं, क्या अलामत बताया था, किसी को याद है? मोटा किस तरह पढ़ना और बारीक किस तरह पढ़ना बोल के बोला था मैं, उसका एक। जी। मुस्तालिया, हुर्फ मुस्तालिया। नहीं नहीं, हुर्फे मुस्तालिया तो वो हमेशा मोटे पढ़े जाते। अगर मोटा पढ़े, अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अगर पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे तो मुंह को खूब गोल करके पढ़ेंगे, और जब बारीक अदा करेंगे तो ऐसा स्माइल की जैसा खींचा जाएंगे। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह, एक्सलेंट, बिल्कुल जबरदस्त। तो इस तरह जो है, हम बारीक जब पढ़ेंगे तो होंठ हमारे जो है फैले हुए होंगे, जिससे जो है बारीक पढ़ने की ये अलामत जाहिर हो जाती। और मोटा पढ़ेंगे तो होंठ गोल हो जाते, जिससे मोटा पढ़ने की अलामत जाहिर हो जाती है। तीसरा कायदा हो गया था। अब चौथा कायदा देखिए साहब, रॉ साकिन से पहले याए लयीना हो। याए लयीना किसको बोलेंगे? यानी या साकिन से पहले जबर रहा तो वो याए लयीना, जैसे खैर, गैर वगैरह। अब यहाँ पर जो है इसकी मिसालें हैं, इन मिसालों को आप पढ़ सकते हैं। रा साकिना यानी रा मौकूफा से पहले याए लयीना, या साकिन से पहले जबर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। चलिए साहब, एक एक लाइन जो है पढ़ते रहिए, इस तरह मश्क पूरी हो जाएंगी। फिर इसके इसके कायदे और है इसके, रा साकिन के, फिर हम उसको भी तकमील करेंगे इंशाल्लाह आज के सबक में। चलिए पढ़िए साहब, फर्स्ट लाइन पढ़िए। रॉ जेर बिस्मिल्लाहिर्रहमान। लेडीज फर्स्ट। बिस्मिल्लाह। पहले मोहतरमा की आवाज आई तो आप पहले पढ़ लीजिए, सलीम साहब आप नेक्स्ट पढ़ लीजिए। रॉ जेर री, रॉ दो जेर रिन, रवा पढ़ने की, री, रवा पढ़नी है ना, हिज्जों की, हिज्जों का जी, सबक हो गया। रिजैलुन, रीहुन, जी। अच्छा, इसमें आप पढ़े ना, रिहलतुन, थोड़ा सा कवायद बोलते हुए पढ़िए, ताकि वो पुराने कायदे भी जो है जहन में रहना हमारे। री जालुन। मुतहर्रिक, जी। री जै अलिफ मुतहर्रिक नहीं मद्दा। पढ़नी है। नहीं नहीं नहीं, अब रा आया ना, हम रा का कायदा क्या पढ़ रहे हैं? रा पर अगर जेर हो तो रा बारीक पढ़ रहे हैं हम कायदा, तो पढ़ेंगे रा जी बारीक। रा मुतहर्रिक जी, बोल रहे हैं रॉ तो रा बारीक, मुतहर्रिक बारीक। जै अलिफ मद्दा, लुन तनवीन, जबरदस्त, माशाल्लाह। रीहुन, हम्म। री या मद्दा, हुन तनवीन, हम्म। री यामत रिह, के अलावा, री मुताहरिक फिर जो है बारीक। यामत तो है इसमें, लेकिन रा बारीक का भी कायदा है ना, मुरक्कक का जी, भी कायदा है यहाँ पे। हाँ, री मुरक्कक और फिर जो है यामत, हम तनवीन बराबर। रिहलतुन, हम्म। रिह बारीक, ला मुतहर्रिक, तुन तनवीन, हम्म। अमरिन, जी। अम बगैर खलखला, रिन तनवीन, अल कदरी, अल बगैर खलखला, कद खलखला के साथ, री बारीक। बराबर। अब चूंकि ये अलवे असल में दूसरा कायदा होता, वो हम आगे पढ़ेंगे कायदा, लेकिन चूंकि अब तक वो कायदा हम नहीं पढ़े, इसीलिए जो है बिना खलखला बोल रहे हैं इसको। उमूमन होता क्या आजकल, वो नया चल रहा ना, वो वीडियो बीच में से थोड़ी निकाल लेना, उसमें कुछ भी एडिट कर लेके तोड़ मड़ोड़ करके ये गलत बताए बोल के पेश कर देना, ये माहौल चल रहा है, इसीलिए वजाहत कर दिया साथ में मैं। वरना बोलेंगे कह रहे मुल साहब ये गलत कायदा बोल दिया, वो पढ़े तो भी खामोश रह गए बोलेंगे, इसलिए वजाहत कर रहा हूँ। चलिए सलीम साहब बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पढ़िए एक मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, पहली मरतबा मोटा पढ़ा गया था लाम। लाम को बारीक पढ़ना है, हम सीख लिए ना, अब तक नहीं मालूम था, पढ़ लिए थे, मगर कल से सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाम बारीक पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर रहमान में भी और रहीम में भी जो है रा को मोटा पढ़ेंगे।
जी सर। मुनहमिर। हम्म। फिरऔना। इसके कायदे बोलिए ना। जी। बोलिए। मुन बिना खलखला। अभी बिना। गैर खलखला, माफ। हाँ, चूंकि हाँ। अभी नून साकिन के कायदे नहीं गैर पड़े ना, खल आज के सबक में पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा नून जी साकिन के बाद हा आने से कौन सा कायदा होता है, अभी नहीं मालूम ना वो, तो इसलिए बिना कलकला बोलेंगे फिल वक्त। समझिए तक जी। वो। हा मुतहरिक। मिर। बगैर खलखला, रा बारीक। रो बारीक बस। फिरऔना। फिरऔनु। फिर आओ नु। फिरऔनु। जी। फिर गैर खलखला, रा बारीक। औ गैर खलखला, नु मुतहरिक। नहीं, बहुत साकिन से पहले जबर है ना यहाँ पे। वाव। मौलीन। हाँ, वलीन बोलेंगे उसको। मौलीन। नु हम्म। मुतहरिक। जी। यगफिर लकुम। जी। यग गैर गैर खलखला। हम्म। फिर रोजेर, रा बारीक। हम्म। ला मुतहरिक। कुम गैर खलखला। जबरदस्त माशाल्लाह। वज दुजिर। हम्म। माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं अच्छा। फवायद का ख्याल रखते हुए पढ़ रहे हैं अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। आमीन। वज गैर खलखला। दू मुतहरिक। जिर रा बारीक। जबरदस्त माशाल्लाह। चलिए साहब, नेक्स्ट लाइन। अच्छा, ये महनाज साहिबा आज इससे पहले भी एक मरतबा ज्वाइन हुए थे शायद। महनाज साहब, अपना तारुफ कराएंगे आप? या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सब। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबक नंबर 12 की एक मिसाल, अभी जो ऊपर लाइन पढ़े ना सब आखिरी वर्ड में है, देखिए खाली हुर्फ को पढ़ने का तरीका। हाँ, एक बार खाली। वो जी, हो जो फिर खाली से है। आप बोले तो मेहरबानी होती थी। हाँ हाँ, ये जो है खाली हुरूफ उमूमन लिखे जाते हैं मगर ये पढ़े नहीं जाते। मैं भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइलेंट है ताबुलैस। हाँ, साइलेंट रहता, बस 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 साइलेंट रहता। उमूमन कायदे में शुमार नहीं करते उसको। वो खाली समझने के लिए है, इसीलिए मैं उसको पढ़ा भी नहीं, आगे बढ़ गया। नंबर 12 है मुल सब। हाँ हाँ, वही 12 पे है वो। नहीं, 12 नहीं होता, खलखला के बाद होना ना। 12 पे तो ये है मस्त। 12 नहीं है। आप 12 बोले तो मैं 12 पे गया। तो नहीं, सबक नंबर 12 मुल सब, पेज नहीं। सबक नंबर 18। सबक नंबर 18 पे, सफा नंबर 18 पे भी एक है वो। आप ये बोल रहे हैं ना? ये जी खाली हर्फ का कायदा है, जिस हर्फ पर हरकत या जज्म ना हो उसके बाद के जज्म या तजदीद वाले हर्फ हो तो खाली हर्फ को छोड़कर बाद के जज्म या तजदीद वाले हर्फ से हम उसको जो है मिलाकर पढ़ेंगे, बोल के कायदा है। मगर इस कायदे का कोई मतलब असल नहीं है। ये बस समझने के लिए बच्चों को, चूंकि छोटी छोटी चीजें समझाना पड़ता ना। अब जैसा कि यहाँ जी पर जो है फा अलीफ है फिर दाल है। अब बच्चा पढ़ने में इसको कंफ्यूज हो जाता, फाद नहीं पढ़ना बोल के उनको बता दिया कायदा। देखो बाबा, ये अलीफ पे अगर कुछ भी नहीं है और उसके बाद वाला अगर मुत्तह साकिन हर्फ है तो ये मुत्तहर्रिक को हम साकिन से मिला के फद पढ़ेंगे बोल के बताते हैं उनको। इसी तरह ये जी साकिन हर्फ रहने दो या मुशद्दद हर्फ रहने दो, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वो बाद वाले हर्फ को मिला लेते हैं। बीच में अगर कुछ अलामत है तो हम उसको नहीं पढ़ते। समझ में आ गया ना? जी मुल सब। हम्म।
कौन से सफे पे थे कि हम? 32 पे थे ना? 30, 31, चलिए साहब, सफा नंबर 31। कौन पढ़ रहे, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। महनाज, माशाल्लाह, दो नाम बता रहे हैं, महनाज और महनाज, दो आईडी बता रहे हैं। महनाज साहब अपना तारुफ कराइए मेहरबानी, या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया तो रोजाना जो है इंशाल्लाह क्लास में शरीक रह सकते हैं आप। जी, अल्फरीद साहब या फिर सलीम साहब, कौन पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप, सैयदा साहबा? सेहर। अच्छा, सलीम साहब का हो गया, सेहर। अल्फरीद साहब बाकी है सर। अल्फरीद साहब आप पढ़ेंगे नहीं, सलीम में से पढ़ेंगे? सलीम साहब भी पढ़े आज। अच्छा चलिए ठीक ऐसा सुनता हूँ, हाँ। है, हाँ सुन लीजिए, ठीक है। बिस्मिल्लाह। सेहर। हम्म। हिज्र। हम्म। बिक्र। हम्म। बसीर। स्वाद मोटा, रा बारीक। बसीर। 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 हम्म। कबीर। हम्म। खदीर। ये फिर बोलिए। खदीर। नहीं नहीं, कबीर। 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 अब यहाँ पर यामत की मिसालें देखिए, एक में, दो में, तीन में। अब यहाँ पर पूरे जो है या लीन है, देखिए। हम्म। यालीन। गैर, खैर, तैर, सैर, दैर, उज़ैर, इस तरह पढ़िए इसको। गैर। गैर, गई बोल के गैर। अगर गई पड़े ना, तो उसको गई कर जी। देना, गैर तो मारूफ होता, वो गैर। पड़े तो मजहूल होता। गैर। हम्म। खैर। फिर बोलिए। खैर। तैर बोले तो मजहूल हो गया वो, तैर है ना वो, ताया जबर, तई, तोय। तई तई। तोय। हाँ, तो तैर तोय। पढ़ेंगे। तोयर। हम्म। तैर। हम्म। जैर। दाद मोटा, जोयर। उज़ैर। जोयर। अच्छा, दैर। जोयर। हाँ। उजैर। हम्म। हो गया मतलब। अब देखिए साहब, इसके बाद ये तो चार कवायद हो गए। अब फायदा बता रहे हैं, एक इमाला का कायदा आता, ठीक है। हम हर कायदे जो भी पढ़ते हैं, वो बहुत जगह जो है कुरान में मुस्तआमल होते, इस्तेमाल में आते हो। इमाला का एक कायदा है, पूरी कुरान मजीद में एक मरतबा उस कायदे का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। वो कहाँ पे हुआ? सूरह हूद, पारा नंबर 12, रुकू नंबर 4। इमाला की हालत में भी रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। इमाला का जब कायदा होगा, उस वक्त रॉ को मोटा नहीं बल्कि बारीक पढ़ेंगे, जैसे मज रे हा। अब यहां पर देखिए, रॉ पर खड़ी जेर है ना, रॉ खड़ी जेर री होता, मगर हम इसको री नहीं पढ़ के सितारे के रॉ की तरह इसको हम खींच के पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर वजाहत करें, बरिवायत सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह, कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह इमाला सूरह हूद पारा नंबर 12 रुकू नंबर 4 मरवी है। इस लफ्ज को, इसको लफ्ज सितारे की रॉ की तरह पढ़ेंगे। सितारे कैसा पढ़ते हैं वैसे, मज रे हा पढ़ेंगे इसको, मज रे हा, मज रे हा। इसी तरह ये तो पहली पहली अलामत, पहली जो है एक कायदा मजरे हा हमें। और दूसरा, सूरत शुरा, लफ्ज फिर्क की रॉ को बारीक और पुर हर दो तरीके से पढ़ना जायज है, लेकिन बारीक पढ़ना बेहतर है। इसी तरह अलकित्र की रॉ को बारीक पढ़ना बेहतर है, और अल मिस्र की रॉ को पुर पढ़ना बेहतर है। फिर्क है सूरत शुरा में लफ्ज फिर्क, उसको बारीक और मोटा दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। इसी तरह अलकित्र है, अलकित्र की राह को
बारीक पढ़ेंगे। और अलमिस्र की रा को हम जो है पुर पढ़ना बेहतर है, बेहतर है। इसी तरह तीसरा कायदा, इसका तीसरा उसूल एक बतला रहे हैं। अलिफ जो हमेशा साकिन होता है अपने पहले हर्फ का ताबे होगा। जो अलिफ हमेशा साकिन रहता, वो क्या होगा, अपने पहले हर्फ का क्या होगा, ताबे। पहला हर्फ जैसा रहेगा वो भी वैसे ही करेंगे आप, अलिफ भी। जैसे साकिन हो या फिर काली हो, अलिफ यानी लफ्ज अलिफ को काली तस्वुर करेंगे ना, अलिफ बोले तो। अलिफ हरूफ मुस्तालिया खुस्सा वक्तिन क़िद के बाद आए तो पुर होगा। जैसे आ सौ, सात चूंकि मोटा पढ़ रहे, इसीलिए वो अलिफ की जो आवाज आएगी हमारे, यानी जो हम दराज करेंगे उसको, अलिफ मत जो हम करेंगे उसी एतबार से उसको पढ़ेंगे, आसौ, कौला, इस तरह वगैरह। अगर इन हुरूफ के सिवा बाकी हुरूफ के बाद आए तो फिर बारीक होगा। जैसे आमा, का मा, जो हर्फ की हरकत होगी उसी हरकत के एतबार से हम वहां पर अलिफ मत करेंगे या फिर जो है अलिफ मकसूरा करेंगे। ठीक है। अगर मोटे पढ़ने के हुरूफ यानी हुरूफ मुस्तालिया आ गए तो वहां पर हम मोटा पढ़ेंगे। हुरूफ मुस्तालिया के अलावा जितने हुरूफ हैं उसमें से कोई हर्फ आ गया तो हम वहां पर क्या करेंगे साहब, बारीक पढ़ेंगे। अब देखिए इमाला की तारीफ कर रहे हैं। इमाला जबर को जेर की तरफ और अलीफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को कहते हैं। लफ्ज इमाला किसको बोलेंगे, जबर को जेर की तरफ, अलीफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहेंगे। मजरेहा। ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया ये सबक? ये सबक समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगर कुछ डाउट है तो इसको जी। क्लियर। अब देखिए, अच्छा, हदीस मुबारक, एक मशहूर हदीस मुबारक है, देखिए मुत्तफक अलैह है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। तो मतलब ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात भी बेहतर है और मैं भी बेहतर हूँ, हम सब बेहतर है, क्योंकि हम कुरान को जहाँ यहाँ पर जो है सीख रहे हैं भी, सिखा रहे हैं भी। मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, आप भी मेरे से सीख रहे हैं, आप भी जो है मेरे को सिखा रहे हैं, मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। इस तरह हम दो क्या है, बेहतर है सब में इंशाल्लाह, जैसा कि हदीस मुबारक का क्या अल्फाज है। अब देखिए साहब, नूने साकिन और तनवीन। ठीक है, तनवीन तो हम पढ़ लिए, दो जबर, दो जेर, दो पेश को क्या बोलते बोले हैं, तनवीन बोलते बोले ना। तनवीन का सबक तो ऑलरेडी हम पढ़ लिए। नूने साकिन किसको बोलते बोले थे, जिस नून पे जजम हो हम उसको बोलते बोले थे नूने साकिन। ठीक है, तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहेंगे। नूने साकिन जिस नून पे जजम आ गया, जिस नून पे साकिन आ गया उसको हम बोलेंगे नूने साकिन। अब नूने साकिन और तनवीन के जो अहकाम हैं वो देखिए कि नूने साकिन और तनवीन दोनों की आवाज एक जैसी होती। ठीक है, जैसे हमजा नून जबर अन, हमजा दो जबर अन, हमजा नून जेर इन, हमजा दो जेर इन, हमजा नून पेश उन, हमजा दो पेश, हमजा दो पेश उन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह दोनों की आवाज एक जैसी रहती। अब इन दोनों के चार आकाम है सब। इसमें से पहला है इजहार, दूसरा है इदगाम, तीसरा है इकलाब और चौथा है इख्फा। ये चार कवायद है देखिए, तनवीन और नूने साकिन के चार कवायद है इसके। सबसे पहले है इजहार। अब तारीफ इजहार कर रहे हैं कि नून की आवाज को साफ जाहिर करके पढ़ने को इजहार कहते हैं। नून की जो आवाज है ना, जैसे कि हम अन पढ़ रहे तो ये अन में नून की आवाज जो आ रही, ये नाक से नून की आवाज जो निकलती, हम उसको क्या करेंगे, साफ जाहिर करेंगे। उस जाहिर करके पढ़ने को इजहार कहेंगे। अब इजहार के छह हरूफ है जुमला, हमजा, हा, आइन, हा, गइन, ख। ये और पूरे के पूरे हलक से निकलने वाले हैं। देखिए हमजा हा आखिरी हलक से, आइन हा दरमियानी हलक से, गइन ख इब्तदाई हलक से, पूरे हलक से निकलने वाले हरूफ है। अब कायदा बतलाने, कायदा क्या होगा इसका, नूने साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इजहार हमजा हा आइन हा गइन खा में से कोई हर्फ आए
تو نون کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من آمنا، من آمنا، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا یہاں پر، حمزہ آنے کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، نون کا اظہار کر کے من آمنا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح من ہم، نون ساکن کے بعد ہا آ جانے کی وجہ سے ہم یہاں پر ہا کو ظاہر کر کے، نون کو ظاہر کر کے، ہا کا اظہار کر کے من ہم، اس طرح جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح انعمتا، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، عین حروف اظہار میں سے ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے انعمتا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح علیم حکیم، علیم حکیم، یہاں پر من تنوین ہے، اس کے بعد ہا آ گیا، ہا چونکہ اظہار میں سے ہے، اسی لیے ہم کیا کریں گے صاحب، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور ایک بات بتلا رہے ہیں، ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں، حروف اظہار کو ہم کیا کہتے ہیں، حروف حلقی۔ حروف حلقی اس وجہ سے بولتے ہیں چونکہ تمام کے تمام حروف یہ حلق سے نکلنے والے ہیں، اسی لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں صاحب، حروف حلقی بھی بولتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں صاحب، حروف اخفا، سوری حروف اظہار۔ اظہار، اظہار۔ اب سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے اس کی مثالیں ہیں، اس کی تھوڑی مشق کر لیں گے پھر آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ من آ، من اظہار آ متحرک، من اذینا، من اظہار آ متحرک، ذی متحرک نا متحرک، کوفون احد، کو متحرک، فو متحرک، ون اظہار آ متحرک، ہا متحرک، دن تنوین، شجراتن اقلام، شجراتن اقلام، شا متحرک، جا متحرک، را متحرک، تن اظہار، اق قلقلہ، لا الف مد، من تنوین، عذاب علیم، ع متحرک، ذا الف مد، بن اظہار، آ متحرک، لی یامد، من تنوین۔ چلیے صاحب ایک لائن میں پڑھ دیا، نیکسٹ لائن پڑھیے، یعنی تو اسی کو دہرانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ من 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 ازینا. نہیں نہیں، ایک منٹ، یہاں پہ من آ کے بعد یہاں پر فل اسٹاپ ہے نا، یہاں پر مطلب یہ کہ اس کو اتنا ہی پڑھنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے، من بس۔ اب اس کا من قاعدہ بولیے، ازینا. من آ، من من اب اس کے قاعدے بولیے آپ۔ من اظہار متحرک. جی، اس کے بعد من ازینا. عزی بولے تو زال من پیچھے جاتا، من ازینا. من اذینا، من من اذینا، من ازینا. اذینا، ازینا. من اذینا، من ازینا. اذی، زال کی زبان باہر، من اذینا، من ازینا. آ نہیں کھینچے جانا، آ کھینچے گیا تھوڑا، من ازینا. ہوں من اظہار ہوں، الف متحرک. الف کہاں ہے صاحب؟ متحرک. زی ہاں، متحرک. نا متحرک. کفون احد. زبردست، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، کو متحرک. کو متحرک. ون الف مد. ون، ون الف مد. الف مت کہاں سے ہوتا؟ یہ الف تو خالی ہے نا، یہ خالی حرف کو تو ہم پڑھیں گے نا، ہاں جیسا کہ ابھی پڑھے ہم قاعدہ ہاں، خالی۔ ون ون اظہار. ہاں، تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ آ گیا، حمزہ آنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، اس کو اظہار کہیں گے۔ اظہار. اظہار. ہوں متحرک. ہوں متحرک. دون تنویر. ہوں، سزرتن. سزرتن. اق اقلمون. نہیں نہیں، شجرتن اقلام، شجرتن اقلام، سزرتن اقلام.
शजरतिन अक़लामुन। शजरतिन अक़लामुन। 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 लाम बारीक पढ़िए। शजरतिन अ- अक़लामुन। शजरतिन अक़लामुन। ऐसा। सा मुतहर्रिक, जा मुतहर्रिक, रा मुतहर्रिक, तिन इजहार, इजहार, हम्म। अक, अक कलकला, हम्म। अक कलकला, ला मुतहर्रिक, मुन तनवीर, हम्म। अजाबुन अलीम, अज़ाबुन अलीमुन। अजाबुन अलीमुन, हम्म। आ मुतहर्रिक, जा अलिफ मद, बुन, बुन ये क्या, इज़हार। इजहार, बुन इजहार, आ मुतहर्रिक, ली बिना कलकला, यामत बोलेंगे इसको। क्यामत, हाँ, मुन तनवीन। देखिए मुन अब तनवीर। इजहार का कायदा तो हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग जो है थोड़ी हम्म, सी इसकी मशक कर लीजिए। इंशाल्लाह कल क्या करेंगे, पहले इसको सुन लेंगे इजहार के कायदे को, फिर आगे जो कवायद बताए जा रहे हैं नून साकिन के, हम जो है फिर उसको इंशाल्लाह कल के सबक में शामिल कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम को सही सही बातजवीद कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जिस अंदाज में कुरान को नाजिल किया गया मौला, उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान के नूर से हम तमाम को मुनव्वर फरमा, कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। कुरान के सदक़े हमारी और हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे। कुरान के सदक़े इलाहुल आलमीन मौला दुनिया में भी सुरखरुइयाँ अता फरमा, आखिरत में भी कामयाबियाँ अता फरमा। कुरान के सदक़े हमारे दीन और दुनिया दोनों संवार दे।